ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، فوراً نبی نے دروازہ بجا دیا۔ ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے۔ سرکار مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، زمین پر اتار دیا، آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میرا حسین باہر نکلتا ہے تو یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جیسے کوئی نوکر مالک کے پیچھے چل رہا ہو، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سفر سے لوٹے سرکار، اے ام سلمہ میں استراحت کر رہا ہوں، اگر کوئی ملنے آئے تو اسے کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ نبی حجرے میں تھے کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سن و سال 3 سال کا سن ہے، کم سنی ہے جناب امام حسین کی۔ خبر ہو گئی کہ نانا آ گئے ہیں، سفر سے واپس آ گئے ہیں، تو جیسے ہی خبر ہوئی کہ نانا آ گئے ہیں، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، حجرے میں جانے لگے تو بی بی ام سلمہ کھڑی ہو گئی، بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر ملنے آئے تو اس کو کہہ دینا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ تو ایک ٹھنڈی سی سانس بھر کے کہا مجھے بھی روکا ہے؟ نانا نے کہا تھا کہ حسین کو بھی نہیں آنے دینا۔ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، یہ نہیں کہا، ہاں سب مطلق کہا ہے کہ کسی کو نہ آنے دینا، بس یہ سن کر حسین مولا مڑے۔ سنیں گے ابھی 2 قدم آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، دوش پر ابا نہیں تھی۔ میرے مولا نبی نے فوراً بی بی کو دیکھ کر کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا۔ چند قدم آگے گئے اور ایک مرتبہ امام کو گود میں لیا، پیار کر کے اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ نبی حسین کو اپنے حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز حجرے کے باہر آئی، اور نبی اتنا بلند رو رہے تھے کہ میں مضطرب ہو کر حجرے میں چلی گئی کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے سرکار، رو کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہیں آپ رونے کے لیے۔ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ حسین کے گلے کا بوسہ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ حسین کے پیشانی کا بوسہ دیا، پھر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کے ایسے بوسے دے کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ وہ بچہ ہے، مجھے جبریل نے بتایا کہ اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، میرے اس بچے کی پیشانی پر پتھر مارا جائے، مجھے جبریل نے بتایا میرے بچے کے بدن پہ جانور دوڑائے جائیں گے، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اور حسین کو پیار کر کر کے نبی رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے۔ ایام ازاں ہیں، ایام گریہ ازاری ہیں، اور خاص طور پر آپ کے خطے میں مصائب سننے کے لیے اور رونے کے لیے ہم آتے ہیں۔ یہاں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، بعض جگہ طویل مصائب کو روک دیا جاتا ہے، ہم دنیا جہان میں پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے علاقوں میں خواہش ہوتی ہے کہ ابھی اور پڑھیے، ابھی تو آپ نے مصائب پڑھے ہی نہیں۔ البتہ عزاداروں بعض اوقات ایک جملہ رونے کو بہت ہوتا ہے، جی ایک جملہ۔ میں مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو ایک روتا ہوا عزادار مجھ سے کہنے لگا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں نے کہا بھائی کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ گھنٹوں روتے رہے اس جملے پر، اجرکم اللہ، کہ حسین گھوڑے سے گر گئے۔ ایک جملہ بعض اوقات رونے کو بہت ہے۔ نجف اشرف میں مجلس ہو رہی ہے اور ایک ذاکر، ایک مدعا، ایک روزہ خان مصائب پڑھ رہا ہے، آیت اللہ شیرازی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک جملہ ذاکر نے کہا، انہوں نے چیخیں مار کے گریہ کیا اور اتنا روئے کہ 3 گھنٹے بے ہوش ہو گئے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب ذاکر نے کہا نا آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے،
की तरफ, हमारी बेटी की तरफ, हमारी बहन की तरफ, हमारी ज़ौजा की तरफ कोई अजनबी देख रहा हो और देखने के अलावा कोई कदम उठा रहा हो, तो शायद वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। हम सोच सोच के मर जाएंगे, हम सोच सोच के मर जाएंगे कि ये हमारी नामूस के साथ क्या हुआ। सलाम करें ना इमाम सज्जाद को, अजरुकम अल्लाह। कुर्सी पर बैठे हुए एक शख्स ने जनाबे सकीना की तरफ इशारा किया। बीबी भाई सैयद सज्जाद से लिपट गए और कहा, भैया ये तो सुना था कि हमें असीर बनाया जाएगा, हमने ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगा जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हम आता है रोने के लिए। इब्ने रबी नामी एक शख्स है, वो कहता है कि मैं शाम अपने किसी जाती गरज से गया, मुसाफिर खाने में सराय में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, शहनाइयां बजने की आवाजें आई, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्स और तर्ब की आवाजें आ रही थी। कहता है कि उन आवाजों से मेरी आंख खुल गई। मैंने बराबर वाले हुजरे में ठहरे एक मुसाफिर से पूछा, भाई आज कोई मुसलमानों की ईद का दिन तो नहीं है, या आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं, या आज सुरूर और शादमानी किस बात की है? तो उसने कहा कि करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, हाकिम वक्त के सिपाहियों ने उसे मार दिया और उसके साथियों को मारकर उनके कटे हुए सर लाए हैं और उसके बच्चों को असीर बनाकर लाए हैं। कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जंग कैसी हुई है, किसे मार कर लाए हैं। क्या मैं मुसाफिर खाने से निकला और बाजार में आया जहां नेज़ों की अनियों पे सर थे, कुछ बच्चियां थीं, कुछ औरतें थीं, कुछ बीवियां थीं जिनको असीर बनाया हुआ था। उनके आगे आगे एक शख्स, एक मर्द चल रहा था जिसके हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में बेड़ियां थीं, गले में खारदार तोप था। कहता है मैं सामने आके खड़ा हुआ, क्या नाम है? इब्ने रबी नाम है। कहता है मैं सामने आके खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हें करबला में मार दिया? तुम्हें ऐसे असीर बनाकर लेकर आए हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये क्या किया तुमने करबला में? तो उस असीर ने गर्दन उठाकर मुझे देखा, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी। जब मैंने उस पर एतराज किया तो उसने अपनी गर्दन उठाकर मुझे देखा और कहा, इब्ने रबी तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा ताल्लुक तो शाम से नहीं है, और तुम्हारे फला बुजुर्ग का तो ये कारनामा था, तुम तो फला कबीले के रहने वाले हो। ये कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि ये कौन है जो मेरे नाम को भी जानता है, मेरे कबीले को भी जानता है। मैंने आगे बढ़कर कहा, आप कौन हैं? आप जो मुझे जानते हैं, आप हैं कौन? तो उस असीर ने मुझे कहा, इब्ने रबी मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ। हाथ पैर कांपने लगे, कहने लगे, मौला इमाम हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े की अनी पे कुरान की तिलावत सर कर रहा है वो मेरे बाबा हुसैन का सर है। और ए इब्ने रबी और न पूछना, यहाँ जो बीबियां हैं वो मेरी माँ बहनें हैं, मेरी फूफी ज़ैनब है। अज़ादारों आप रो रहे हैं, अल्लाह किसी करीम को ये दिन ना दिखाए। देखिए देखिए, बाजुओं के कटने पर भी मौला अब्बास को तकलीफ हुई थी, मगर उससे बड़ी तकलीफ ये थी कि उमर साद के खेमे पे जाके कहें हमें एक रात की मोहलत दे दो। ये किसी करीम, किसी शरीफ के लिए किसी से मांगना, ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। इमाम सज्जाद से इब्ने रबी ने कहा, मौला हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूँ? इमाम ने जुमला जो कहा ये खुद इमाम सज्जाद की बड़ी मुसीबत है। इमाम ने फरमाया, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? कहने लगा, मौला 2000 दिरहम है, मौला 2000 दिरहम है। इमाम ने फरमाया, जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले। इब्ने रबी कहता है, मैं 1000 दिरहम की चादरें लेकर आया। इमाम ने फरमाया, मेरी माँ बहनों को दे दो। मैंने नबी दादियों को चादरें दी। इमाम के सामने आके खड़ा हो गया, मौला और कोई हुक्म है? फरमाया, और पैसे कितने हैं? कहा, मौला 1000 दिरहम मेरे पास और बच गए। फरमाने लगे, जो नेज़े उठाए हुए लोग हैं ना, जिन पे सर हैं, ये दरबार में पैसे लेने जा रहे हैं, इन्हें इनाम मिलने वाला है। तुम ये सरों वालों को पैसे दे के कहो कि सरों को आगे ले जाएं, ताकि लोग सरों को देखें, ज़ैनब को ना देखें। अल्लाहु अकबर।
नबी कहता है इसी असना में मैंने देखा एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। कहता है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तलवार निकाल ली, मैं उसकी तरफ जाने लगा जिसने हुसैन को पत्थर मारा था। तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, अपने रबी रुको, तलवार वापस रखो, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। मेरा भाई रजा अब्बास अभी जनाबे ज़ैनब की चादर का नोहा पड़ेगा, मेरे मसाइब के साथ वो जोड़ेंगे। अज़ादारो, जो ज़ैनब बाबा के सामने बगैर चादर के ना जाती, जो ज़ैनब भाइयों के सामने बगैर चादर के ना जाती हो, जो रोने आए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, मेरे जुमले को महसूस करेंगे। मेरी बीवी ज़ैनब कभी बाबा के सामने बगैर चादर के नहीं गई, मेरी बीवी ज़ैनब भाइयों के सामने बगैर चादर के नहीं गई। मैं रोने वालों से सवाल कर रहा हूँ, शामे गरीबा में बगैर चादर के नमाज कैसे पढ़ी? वो मगरिब की नमाज जो ज़ैनब ने करबला के मैदान में पढ़ी और आवाज दी होगी अल्लाह अकबर, या अल्लाह ज़ैनब से इस नमाज को कबूल कर ले। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। एक मंजिल और आगे आ जाइए, एक मंजिल और आगे आ जाइए। मुझे नहीं पता शामे गरीबा में पानी कहाँ से आया, मुझे नहीं पता शामे गरीबा में खाना कहाँ से आया, मेरी तहकीक पूरी नहीं है, मगर ये सब किताबों ने लिखा है कि शामे गरीबा में पानी आया, खाना आया। जनाब ज़ैनब ने कूज़े भर भर कर बच्चों को पानी पिलाया। सबसे पहले सकीना को दिया, इमाम मोहम्मद बाक़िर को दिया, छोटे बच्चों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर बीवियों को खाना खिलाया, बीवियों को पानी पिलाया। सुनेंगे जब सब बच्चों ने पी दिया, बीवियों ने खाना और पानी दे दिया, तो जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के करीब आई, कहने लगी ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब पानी नहीं पी रही। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब खाना नहीं खा रही। इमाम सज्जाद उठकर आए, अपनी माँ रबाब के पास आके बैठे, कहा अम्मा पानी पी लीजिए, अम्मा खाना खा लीजिए, ये बदन में ज़िंदगी पलट कर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रहलतें हो जाएं। पानी आ गया है, खाना आ गया है, खाना खा लीजिए। तो एक मर्तबा रोते हुए फरमाया मेरा बच्चा मार दिया। कहा माँ मैं आपसे कह रहा हूँ पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। जनाब रबाब ने हुक्म इमाम पाकर पानी पिया, खाना खाया। मिंबर का अदब माने हैं, मैं इशारे में बात करूँगा, मुझे मिंबर रोक रहा है कि मैं तसरीह नहीं कर सकूँगा। मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं, मजलिस में दूध पीते बच्चों की माएँ भी बैठी हैं। आपके घरों में भी अजीज़ों, आपके घरों में भी दूध पीते हुए बच्चे हैं ना, आपके घरों में भी शीरख्वार बच्चे होंगे। ज़रा कुछ देर मेरे साथ चलिए। आधी रात गुजरी, इशारा करूँगा बस, आधी रात गुजरी, जनाब रबाब बीबी ज़ैनब के बराबर में आके बैठी, कहने लगी मुझे अली असगर याद आ रहा है।